Today's topic of discussion is hematopoietic stem cell, which is we call it HSC. These are the cells which has ability to differentiate into many types of blood cells. Like we all know that all the cells arises from a stem cell. Like stem cell has this property to differentiate into many other cells. So one of the stem cell is a hematopoietic stem cell, and this stem cell has this property to differentiate into many types of other blood cell. Ultimately, this gives rise to all type of blood cell, whether it is RBC, WBC, whatever. It all give rise from the hematopoietic stem cell. Before understanding the depth of hematopoietic stem cell, we need to understand what is stem cell. Stem cells are defined by two capacities. The first, its ability to regenerate or self-renew, and the second, the ability to differentiate into all diverse cell type. सेल स्टेम सेल्स जो होते हैं उनके पास प्रॉपर्टी होती है कि वो अपने आप को रीजनरेट कर सकते हैं, ठीक है, और इनके पास प्रॉपर्टी होती है कि ये डिफ्रेंशिएट हो सकते हैं कई अलग जो डाइवर्स टाइप ऑफ सेल है, सेल टाइप्स हैं, उनमें ये अपने आप को डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं. Because of these two properties, this stem cell is very important in our body. Embryonic stem cell have the capacity to generate every specialized cell type in an organism. In other words, they are pluripotent. So embryonic stem cell के पास कैपेसिटी होती है कि वो जनरेट कर सकते हैं एवरी जो भी स्पेशलाइज सेल टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म, स्पेशलाइज सेल्स हैं किसी भी ऑर्गेनिज्म में, उनको ये क्या करती है, इनके पास प्रॉपर्टी होती है जनरेट करने की, या फिर इनको हम प्लूरिपोटेंट बोलते हैं. तो अगर हम एग्जांपल हो कि प्लूरिपोटेंट सेल्स के एग्जांपल कौन कौन से हैं, तो इट विल कम्स एम्ब्रियोनिक स्टेम सेल. Next is adult stem cell. In contrast, have the capacity to give rise to a diverse cell type that specify a particular tissue. So this adult stem cell ultimately give rise to a cell which has this particular tissue. Okay. Multiple adult organ harbors adult stem cell that can give rise to a mature tissue specific cell. Same thing. The HSC is considered the paradigmatic adult stem cell because it can differentiate into all type of blood cells. तो जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होता है उसको हम एक एडल्ट स्टेम सेल की तरह लेते हैं बिकॉज ये डिफरेंशिएट होता है इन ऑल टाइप ऑफ ब्लड सेल्स. An HSC that is induced to differentiate undergo hematopoiesis loses its self-renewal capacity and make one of two broad lineage commitment choices. जो हिमेटोपोइटिक सेल होता है वो इंड्यूस करता है टू डिफरेंशिएट, और ये क्या करता है, जो इसकी सेल्फ रिन्यूअल की कैपेसिटी होती है उसको लूज कर देता है, और ये टू ब्रॉड लीनिएज में या तो कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनाइटर या कॉमन लिम्फोइड प्रोजेनाइटर में क्या हो जाता है, ये कन्वर्ट हो जाता है. ये जो HSC अंडरगो हिमेटोपोइसिस वो प्रोसेस होता है थ्रू विच जो हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल्स होते हैं उनका फॉर्मेशन होता है. सो इट कैन बिकम अ कॉमन मैलॉइड एर्थ्राइड प्रोजेनाइटर which give rise to all red blood cell, the erythroid lineage, granulocytes, monocytes and macrophages, the myeloid lineage, or it can become a common lymphoid progenitor which give rise to a B lymphocyte, T lymphocyte and NK cells. So this HSC will differentiate into either a common myeloid erythroid progenitor or it will give rise to a common lymphoid progenitor. In case of common myeloid erythroid progenitor, it will give rise to all red blood cell, granulocytes, monocytes, macrophages. Okay. And on the other hand, if it will become a common lymphoid progenitor, it will give rise to a B lymphocyte, T lymphocyte and NK cells. These myeloid cells and NK cells are the member of the innate immune system and are the first cells to respond to infections or other or the insults. So basically we all know that we have two type of immune system. The one is innate immune system and the one is adaptive immune system. We will see in the further upcoming videos. But we all know that we are from the very beginning we all have studied that either it is innate immune system or adaptive immune system. So innate immune system are those immune system which are present in from the birth, like birth से ही ये immune system जो होता है वो body में present होता है. तो जो myeloid cells होते हैं और NK cells होते हैं, ये क्या होते हैं, ये member होते हैं innate immune system के, और ये फर्स्ट सेल होते हैं जो कि रिस्पॉन्स करते हैं जब भी कोई बॉडी में इन्फेक्शन होता है. वी ऑल नो दैट कि जब भी बॉडी में कोई इन्फेक्शन होता है तो वहाँ पे हमारे इम्यून सिस्टम जो होता है वो वर्क करता है. बेसिकली इम्यून सेल्स आते हैं और वर्क करते हैं और जो भी इन्फेक्शन है उसे फाइट करते हैं. तो जब भी इन्फेक्शन होता है तो जो फर्स्ट इम्यून सेल्स आते हैं दीज आर माइलॉइड सेल्स एंड एनके सेल्स. Lymphocytes are member of the adaptive immune response and generate a refined antigen specific immune response that also give rise to a immune memory.
लिम्फोसाइट्स जो होते हैं वो एडॉप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स शो करते हैं बेसिकली आफ्टर बर्थ। जब बर्थ हो जाता है तब उसके बाद जब बॉडी में इम्यून सिस्टम जो आता है यानी इम्यून रिस्पॉन्स जो होता है अडॉप्ट करता है उसको हम एडॉप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स बोलते हैं। ये आफ्टर बर्थ होता है और जो इनिएट इम्यून सिस्टम होता है वो बर्थ के पहले से प्रेजेंट होता है। दिस लिम्फोसाइट्स होते हैं दे आर द मेंबर ऑफ एडॉप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स एंड दिस will give rise to, they are antigen specific, like वो एक एंटीजन के लिए स्पेसिफिक होंगे और उसी से फाइट करेंगे और उसी को लड़ेंगे और उसी को मारेंगे। एंड अल्टीमेटली ये क्या करते हैं, इम्यून मेमोरी भी जनरेट करते हैं। लाइक इम्यून इनेट इम्यून सिस्टम में कोई मेमोरी नहीं होती है। अगर एक बार को आया, फाइट किया, खत्म हुआ, दूसरी बार वो आएगा, उसको याद नहीं रहेगा कि ये वही एंटीजन है, उसको फिर से वो सारा प्रोसेस चलेगा। बट इन केस ऑफ एडॉप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स, द वन ऑफ द मोस्ट जो हमारा सबसे अच्छा बेनिफिट यही है कि इसमें इम्यून मेमोरी होती है कि अगर कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, कोई भी इन्फेक्शियस एजेंट है, अगर वो बॉडी में आता है, हमारा जो इम्यून रिस्पॉन्स उसके खिलाफ शो करता है, लिम्फोसाइट्स आके वर्क करते हैं, तो उसके खिलाफ क्या होती है, मेमोरी बन जाती है। अगर वो वही एंटीजन अगेन हमारी बॉडी में एंटर करता है तो लिम्फोसाइट जो होता है उसको पूरा स्टार्टिंग से प्रोसेस नहीं करना होता है, वो उसको तुरंत पहचान जाता है और किल कर देता है। सो दैट्स हाउ इम्यून सिस्टम वर्क। सो अल्टीमेटली either this HSC will form either common myeloid arthroid progenitor or it will give rise to a common lymphoid progenitor. So this is a hematopoietic stem cell. It is present on a bone marrow, and this has this capacity of self renewal. Okay, this hematopoietic stem cell will give rise to a myeloid progenitor or lymphoid progenitor. It depends. Okay, if it will gives to a myeloid progenitor, it will ultimately give rise to a granulocyte monocyte progenitor, eosinophil progenitor, basophil progenitor, megakaryocyte and erythroid progenitor. अब माइलॉइड प्रोजेनाइटर जो होता है वो डेंड्रिटिक सेल्स को डायरेक्ट भी बना सकता है, या फिर जो ग्रेनुलोसाइट मोनोसाइट प्रोजेनाइटर होते हैं ये गिव राइज करते हैं न्यूट्रोफिल्स को जब भी पेरिफेरल टिश्यू में जाता है, या मोनोसाइट को, और ये मोनोसाइट जो होता है ये फर्दर मैक्रोफेजेस बनाता है या डेंड्रिटिक सेल्स बनाता है। दिस इजनोफिल प्रोजेनाइटर अल्टीमेटली गिव राइज टू इजनोफिल। बेजोफिल प्रोजेनाइटर जो होते हैं वो बेजोफिल को बनाते हैं या मास्ट सेल्स को बनाते हैं, ठीक है, और ये डायरेक्ट भी बन सकता है, लाइक माइलॉइड प्रोजेनाइटर से डायरेक्ट भी बन सकता है। मेगा कैरियोसाइट ये प्लेटलेट्स का फॉर्मेशन करते हैं, और जो एथ्रॉइड प्रोजेनाइटर होते हैं वो अल्टीमेटली गिव राइज करते हैं हमारे एट्रोसाइट्स को, और वी कैन कॉल इट आरबीसी। देन कम्स लिम्फॉइड प्रोजेनाइटर जो कि एडॉप्टिव इम्यून रिस्पॉन्स बेसिकली शो करते हैं। या तो ये नेचुरल किलर सेल्स को फॉर्म करते हैं, या ये करते हैं टी सेल्स प्रोजेनाइटर और बी सेल्स। दे आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट लिम्फोसाइट, टी सेल्स और बी सेल्स or dendritic cells. This dendritic cells is present in both the myeloid progenitor as well as in lymphoid progenitor. ये जो T cells होता है ये बेसिकली थाइमस में ही मैच्योर होता है, और ये B सेल जो T cells प्रोजेनाइटर होता है वो अल्टीमेटली गिव राइज करता है TH cell, or we can call it T helper cell, or TC cytotoxic cell, and this B cell progenitor will give rise to a B cell. So this is the overall picture of hematopoietic stem cell, that how hematopoietic stem cell form this myeloid progenitor and lymphoid progenitor, and how it ultimately give rise to a different type of cell, that is monocyte, neutrophils, basophils, or platelets, erythrocyte, B cell, T cells. I think we all are aware of these words. We will see all this in described manner in further videos. Okay, now the regulation of lineage commitment during hematopoiesis. The transcription factor GATA2 is required for the development of all hematopoietic lineage. In its absence, animals dies during embryogenesis. तो कुछ ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर या GATA2 जो होते हैं वो क्या होती है, जरूरी होता है हिमेटोपोइटिक के लीनिएज को फॉर्म करने के लिए, दैट इज माइलॉइड और लिम्फॉइड। और अगर ये GATA2 अब्सेंस रहता है तो जो एनिमल होता है वो ड्यूरिंग एम्ब्रियोजेनेसिस ही क्या हो जाता है, मर जाता है। Another transcriptional regulator, that is BMI1, is required for the self-renewal capacity of HSC. And in its absence, animals die within 2 months of birth because of the failure of repopulate their red and white blood cell. एक और ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटर है, दैट इज BMI1। ये जो होता है सेल्फ रिन्यूअल की कैपेसिटी जो होती है उसको प्रोवाइड करता है HSC को। तो अगर ये एब्सेंट होता है तो जो भी एनिमल होता है वो विद इन 2 मंथ ऑफ बर्थ में क्या हो जाएगा, डाई कर जाएगा, क्योंकि वो अपने रेड ब्लड सेल और व्हाइट ब्लड सेल को रिपॉपुलेट ही नहीं कर पाएगा, क्योंकि सेल्फ रिन्यूअल की जो प्रॉपर्टी अगर वो रहेगी ही नहीं तो रिपॉपुलेट नहीं कर पाएगा, तो बॉडी में जो भी फंक्शंस है वो हो ही नहीं पाएंगे। तो जो एनिमल है वो 2 महीने के अंदर ही क्या कर जाएगा, डाई कर जाएगा। Next is Icros and Notch are both families of transcriptional regulator that have more specific effect
ऑन हिमेटोपोइसिस। तो इक्रोस और नॉच भी एक ट्रांसक्रिप्शनल रेगुलेटर है जिनका भी क्या होता है हिमेटोपोइसिस में एक बहुत अच्छा रोल होता है। बेसिकली इक्रोस इज रिक्वायर्ड फॉर द lymphoid but not myeloid development. Animals survive in its absence but cannot mount to a full immune response. ठीक है, बेसिकली इकारोज, इफ आई एम, अगर मुझसे गलत प्रोनाउंस करे तो आई एम सॉरी, बट आई थिंक इट्स कॉल्ड इकारोज। ये जो होता है ये बेसिकली लिम्फॉइड के लिए जरूरी होता है, माइलॉइड के लिए नहीं। और इसके एब्सेंस में एनिमल सर्वाइव तो करता है, लेकिन क्या होगा कि इसका जो इम्यून रिस्पॉन्स होगा वो स्लो होगा। ऑफ कोर्स बॉडी को फुली फंक्शन करने के लिए बोथ लिम्फॉइड और माइलॉइड सेल्स दोनों चाहिए। इफ ओनली माइलॉइड प्रेजेंट रहेगा और लिम्फॉइड सेल्स नहीं प्रेजेंट होंगे तो बॉडी का जो इम्यून सिस्टम होगा वो लो होगा। Now, Notch1, one of the four Notch family member, regulates the choices between T and B lymphocyte lineage. जो Notch1 होता है ये भी बेसिकली T और B lymphocyte lineage में चॉइसेस के लिए रेगुलेट करता है, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। तो हिमेटोपोइसिस का जो भी प्रोसेस होता है उसके लिए कुछ ट्रांसक्रिप्शन रेगुलेटर होते हैं जिनकी जरूरत होती है, जैसे कि ट्रांसक्रिप्शन फैक्टर GATA2 हो गया, BMI1 हो गया, इकारोज और नॉच हो गया। तो अगर ये सब एब्सेंस है तो या तो इम्यून सिस्टम लो होगा, या एम्ब्रियोजेनेसिस में ही डेथ हो जाएगी, या तो 2 मंथ ऑफ बर्थ में ही क्या हो जाएगी, डेथ हो जाएगी। तो दैट्स ऑल अबाउट हिमेटोपोइटिक स्टेम सेल। थैंक यू।